Okay, moving to our next speaker, Wajahat Sahab. Wajahat Ali is a practicing lawyer. He's advocate High Court of Pakistan. He's writer and human rights defender with special focus on protection of children rights. Presently, he is serving as co-chair as individual capacity of National Action Coordination Group. Vijay Saab has written over 40 publications in various national and international magazines, journals, conferences, and newspapers. He has also presented his work in previous national and international conferences. His area of expertise lie in human rights law, children in conflict with law, child protection issues, child sexual abuse, neglect and exploitation, child psychiatry and forensic psychiatry, etc. He also provides pro bono legal services to survivors of abuse in human rights violation cases and advocated on behalf of child survivors of abuse and child perpetrators in their cases in the courts of Pakistan. So, Wajahat Saab, I will request you please unmute yourself and tell us more about the topic. ओके मैं अपनी प्रेजेंटेशन जरा शेयर कर लूं. Can you see my presentation? No, I can't see presentation. Which is not here. Abari. Huh? Can you see my presentation? Not yet. No? और yes? वजह साहब ये जो शेयर ट्रे का ऑप्शन है प्लीज इसके ऊपर जाके आप प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो हमें शो हो जाएगी. No? Yeah, it's visible now. Yes, we can see. Okay. वजह साहब if you can इसको अगर स्लाइड शो पे लगा ले तो ज्यादा पूरा वो जो साइड पे जो yes, that's it. That's it. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mahwish, for giving my introduction. First of all, I am thankful to the chairman of NACG, Sayyid Ishtiaqul Hasan Gilani साहब कि उन्होंने मुझे आज के वेबिनार में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने का मौका दिया. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द NACG एडवोकेसी कमेटी कि उन्होंने इस वेबिनार सीरीज का आगाज किया. उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर इस वेबिनार सीरीज का आगाज किया गया और उस वेबिनार सीरीज का ये आज पहला वेबिनार है और उसमें मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर जो है वो इनवाइट किया गया. दैट्स ऑनर फॉर मी एंड आई एम वेरी प्लीज्ड दैट I have been invited to talk on a very important topic. The topic which I choose to talk in today's webinar is entitled as the state of child justice system and human rights of child offenders in Pakistan. This is an area which is very close to my heart because two thematic areas are covered in today's talk: the child justice system and the human rights of child offenders in Pakistan. Being a lawyer, चाइल्ड जस्टिस सिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन रेगुलरली रहता है और एज अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट बच्चों के राइट्स की उनके ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करना दैट्स आल्सो माय रिस्पांसिबिलिटी. सो आई ट्राई टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज टू एरियाज दैट हाउ दीज टू एरियाज कंप्लीमेंट विद ईच अदर एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स आर how they are protected when they are involved in the child justice system of the Pakistan, and what are the loopholes in the child justice system of the Pakistan based on which the human rights of child offenders are violated in Pakistan. I will explain all of these issues later in my presentation. And as Mahwish told in the beginning that NACG has 5 thematic areas. Although this today's thematic area which I choose, child justice system, it doesn't come directly under the thematic area, but it is a cross-cutting theme and indirectly or directly applied on those 5 thematic areas which NACG covers.
This is an overview of my presentation. First of all, the presentation is divided into 5 sections. In the first section, I will talk about the child justice system of the Pakistan, and then human rights of child offenders in Pakistani laws, and then how human rights of child offenders are violated in child justice system of Pakistan. And then suggestions for upheld of child justice system and human rights of child offenders in Pakistan. And at the end, I will conclude my presentation. The purpose of my presentation is to know about the state of the art situation of child justice system of Pakistan and how and human rights of child offenders when they are involved in the child justice system of Pakistan. Some suggestions for the improvement of these issues will also be suggested. So come to the first section of my presentation, child justice system of the Pakistan. चाइल्ड जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा जस्टिस सिस्टम है कि जो बच्चों के लिए एक बनाया गया है कि जब बच्चा कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करेगा और जस्टिस सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन होगा तो उसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाएगा. जो लॉ इसको रेगुलेट करता है चाइल्ड जस्टिस सिस्टम को, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018. I will briefly tell its salient features and then I will move on my next part of my presentation. First of all, ये लॉ 2018 में आया था और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए. जो पहला लॉ था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2002, उसको इसने रिपील किया और इस लॉ के इस जो डेफिशिएंसीज थी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को, उसको इस लॉ ने ओवरकम किया. Basically, this law classified the criminal offenses into 3 categories: minor, major, and heinous. Minor mean कि ऐसा offense जिसकी सजा 3 साल तक imprisonment है या fine है, वो minor offense कहलाएगा. Major offense कौन सा है? जिसकी सजा up to 7 year imprisonment है, with or without fine. More than 3 year or up to 7 year imprisonment. That would be called the major offense. Or heinous offense, which is gruesome, brutal, शॉकिंग टू पब्लिक मोरालिटी, और इसकी सजा जो है वो उम्र कैद या डेथ सेंटेंस है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years. दैट वुड बी कॉल्ड द हीनियस ऑफेंस. अब माइनर एंड मेजर ऑफेंसेस जो हैं वो जुवेनाइल के लिए बेलेबल डिक्लेयर किए गए हैं अंडर दिस लॉ. कोई बच्चा कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है जिसकी सजा up to 7 year तक imprisonment है with or without fine है, तो that would be released on bail with or without surety bond by the juvenile court or by the police as well. And the next feature is exclusive juvenile courts, as Ishtiyaq Gilani sab told before that juvenile courts would be established at district level throughout the Pakistan. ये इस लॉ का एक फीचर है. नेक्स्ट के ऑब्जर्वेशन होम्स. ऑब्जर्वेशन होम्स क्या है? Where the juvenile will be held temporarily when he will be apprehended by the police or law enforcement agencies for the purpose of inquiry, investigation, or during the remand period. उस बच्चे को जो है वो ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, और ये ऑब्जर्वेशन होम जो है ये आउटसाइड द पुलिस स्टेशन एरियाज जो हैं वहां पे ये बनाए जाएंगे. ये विद इन पुलिस स्टेशन एरिया में नहीं बनाए जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है बेसिकली इस्लाम में प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया है कि अगर बच्चे को जो है इम्प्रिजनमेंट देनी है तो उसको प्रिजन में भेजने के बजाय जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा, जहां पे उनको जो है वोकेशनल, टेक्निकल, एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द मॉरल, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ताकि जब वो बच्चे जो है रिलीज किए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर इम्प्रिजनमेंट पीरियड, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जो है वो सोसाइटी में जो है वो इन्वॉल्व हो सके, रीइंटीग्रेट हो सके, और दोबारा जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो बन के इस मुल्क की जो है वो बागडोर संभाल सके.
और दोबारा इस किस्म के ऑफेंसेस कमिट ना करें. And determination of age mechanism, that is also the new I mean, this is the concept which was previously present in JJSO 2000, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं था एज डिटरमिन करना. इस लॉ के अंदर इसको कंपल्सरी किया गया है कि जो ही कोई पुलिस ऑफिसर और आईओ जो है वो बच्चे को अरेस्ट करेगा, or if he physically looks or appears to be a child or claims himself to be a child, then it would be compulsory upon the IO or the SHO of the police station कि वो उस बच्चे की एज को डिटरमिन करे. तो एज कैसे डिटरमिन की जाएगी, उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि उसका या तो जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखे जाएंगे, और कोई डॉक्यूमेंट अगर रिलेटेड है जिसके अंदर एज मेंशन की हुई है तो वो उसकी बेस पे उसकी एज डिटरमिन की जाएगी. लेकिन इन केस अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में उसकी एज जो है थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर, उसकी रिपोर्ट की बेस पे उसकी एज डिटरमिन की जाएगी. ये एक टेस्ट होता है, ओसिफिकेशन टेस्ट, हड्डियों का टेस्ट होता है. तो वो बताता है कि इस बच्चे की अप्रॉक्सीमेट एक टेंटेटिव असेसमेंट देता है कि ये बच्चा जो है ये माइनर है या अडल्ट है. एंड नेक्स्ट डाइवर्जन, दिस इज आल्सो द न्यू फीचर अंडर दिस लॉ. Diversion is to determine the responsibility and treatment of the child offender without resorting the formal judicial proceedings. तो डाइवर्जन में क्या होगा कि आउट ऑफ कोर्ट जो है वो विदाउट फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग को अडॉप्ट किए हुए बच्चे को जो है कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और उसको जो है वो जो है कोई ऐसी आई मीन माइनर से उसको जो है पनिशमेंट दी जाएंगी जो कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी. तो डाइवर्जन जो है ये माइनर और मेजर ऑफेंसेस के लिए जो है वो एक्सरसाइज की जाएगी. हीनियस ऑफेंस के लिए ये एक्सरसाइज नहीं की जाएगी, और मेजर ऑफेंस में भी उस सूरत में एक्सरसाइज की जाएगी if the age of child is below 16 years of the age at the time of commission of offense in case of major offense. तो डाइवर्जन एक्सरसाइज कैसे होगी, कैसे इसको एक्सरसाइज किया जाएगा इन केसेस ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स? जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज के थ्रू. जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज बेसिकली इट्स अ कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स, जिसमें एक सर्विंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे विद द पावर्स ऑफ सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके मेंबर होंगे. उसके बाद मेंबर ऑफ लोकल बार हैविंग 7 years स्टैंडिंग इन द बार हु वुड बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एंड प्रोबिशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर इसका मेंबर होगा. तो ये 4 बंदों की एक कमेटी होगी. तो जब केस जो है वो रेफर किया जाएगा with the consent of the child offender and with the permission of the child court or prosecution or police भी रेफर कर सकती है during investigation for exercise of diversion process. prosecution भी कर सकती है during trial, और court खुद भी जो है वो केस को डाइवर्जन के लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को रेफर कर सकती है. तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी विद द कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट जो है वो डाइवर्जन को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, और चाइल्ड को जो है वो मोड्स ऑफ जो डाइवर्जन होंगे वो इस तरह होंगे कि बच्चे को जो है अगर उसने कोई नुकसान किया है किसी बंदे का तो वो उसकी नुकसान की तलाफी करे. अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज की है वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको जो है वो उसकी कंपनसेशन दे दे, या प्रॉपर्टी चोरी की है तो वापस कर दे, या उसका जो है वो फाइन पे करे, या उसको जो है रिटन और ओरल अपॉलोजी लिख के दे, या उसको रिटन और ओरल रेप्रीमांड ग्रांट की जाएगी, और उसको पार्टिसिपेशन कर दिया, उसको इस इधर कम्युनिटी सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए रेफर कर दिया जाएगा.
या उसको जो है जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा कि वो कुछ अर्सा जो है वो जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन में सेंटर रहे, प्रिजन रहे या उधर रहे, और ताकि जो है उसकी रिहैबिलिटेशन हो सके। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइवर्जन हैं जो कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है इन केसेस ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस लॉ के अंदर ये है कि नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, हैंडकफ्ड और पुट इन फीटर्स टू अ चाइल्ड ऑफेंडर, कि उसको जिस्मानी सजा नहीं दी जाएगी, उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उसको बेड़ियां नहीं पहनाई जाएंगी। और इसके अंदर जो है फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर, कि फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर जो है उसको मेल ऑफिसर जो है कभी भी अरेस्ट या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, बल्कि उसको जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जो है वो दिया जाएगा, वही इसको इंटेरोगेट कर सकती है। उसके अलावा इन केस ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट, तो उसको उन जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा जो कि एक्सक्लूसिवली जो है फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर्स के लिए बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड जो है उसकी आइडेंटिटी को जो है वो सीगाए रास में रखा जाएगा, और कोई बंदा उसको जो है वो पब्लिश नहीं कर सकता इन एनी मैगजीन, न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली on social media or TV channels without the permission of the child offender or without the permission of the IO or police or the child court। अगर child court ने ग्रांट की है कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील करने की जरूरत है, तो उस सूरत में जो है उसकी आइडेंटिटी को जो है वो पब्लिसाइज किया जा सकता है। इन केस के अगर कोई बंदा चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील करता है, पब्लिश करता है इन द पब्लिकली, उसको पब्लिश करता है इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन और सोशल मीडिया, तो इसके ऊपर परपेट्रेटर को 3 साल की कैद और फाइन की जो है वो पनिशमेंट है। एंड नेक्स्ट इज डिस्पेंसेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ चाइल्ड बिफोर द कोर्ट। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो किसी बंदे को जो है, किसी चाइल्ड ऑफेंडर को अगर वो समझती है कि उसकी केस में फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है विदाउट सबमिटिंग एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑफेंडर साइड। और उस सूरत में दूसरी बात यह है कि इसका जॉइंट ट्रायल अडल्ट ऑफेंडर के साथ भी नहीं हो सकता। इन केस के अगर अडल्ट ऑफेंडर के साथ जॉइंट ट्रायल जो है वो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी कि जॉइंट ट्रायल करने की जरूरत पड़ गई है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है, और चाइल्ड जो है थ्रू वीडियो और ऑडियो विजुअल लिंक के थ्रू जो है वो अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करवा सकता है या कोर्ट प्रोसीडिंग ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रोविशन डिपार्टमेंट। प्रोविशन डिपार्टमेंट को बहुत एम्फिसाइज किया गया है इस लॉ के अंदर, और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है। बेसिकली प्रोविशन ऑफिसर जो है वो एक ऐसा बंदा होगा जो कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईओ को असिस्ट करेगा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने में। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होगी? इट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड सोशल, एजुकेशनल, मॉरल, करेक्टर बैकग्राउंड, कि वो जिस एरिया में रहता है उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो किन बंदों के साथ उसका मिलना जुलना है, क्या वो पहले किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व तो नहीं रहा। तो उस एरिया में वो उस लोगों से इंटरव्यू करके एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो आईओ को सबमिट करेगा, और दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द चालान जो कि पुलिस ने अंडर सेक्शन 173 कोर्ट में सबमिट करना है, ये उसका पार्ट बन जाएगा। और then the court will adjudicate on the basis of the social investigation report which the probation officer has submitted to the IO and challan which police has submitted in the court। उसकी बेस पे जो है कोर्ट जो है वो जुवेनाइल को अकॉर्डिंगली पनिशमेंट अवार्ड करेगी या उसको रिलीज कर देगी। उसके अलावा ड्यूरिंग द बेल स्टेज वहां पे भी प्रोविशन ऑफिसर का रोल है कि if child has committed any offense which is bailable,
तो उस सूरत में अगर उसका कोई गार्डियन वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है तो प्रोबिशन ऑफिसर की कस्टडी में जो है उसको दे दिया जाएगा और प्रोबिशन ऑफिसर की कस्टडी में उसको फिर जो है वो रखा जाएगा और रिलीज किया जाएगा, बट वो कोर्ट प्रोसीडिंग को ज्वाइन करता रहेगा लेकिन वो बेल पे रहेगा। और इन केस ऑफ ऑन द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, इफ द जुवेनाइल हैज बीन कन्विक्टेड, तो उस सूरत में भी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस के, या उसको रिलीज कर दिया जाए, या उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए, या उसको जो है किसी ऐसे सूटेबल पर्सन की कस्टडी में दिया जाए जो कि उसकी टेक केयर कर सकता है, या उसको जो है प्रोबिशन ऑफिसर की कस्टडी में रिलीज किया जाए। और कोर्ट उसमें जो है वो ऑर्डर में लिखेगी कि प्रोबिशन ऑफिसर जो है वो कोर्ट को इंटीमेट करेगा, बताएगा कि उसका कंडक्ट कैसा है ड्यूरिंग द प्रोबिशन पीरियड, कि जिन कंडीशन की बेस पे उसको रिलीज किया गया है क्या वो उसको कंप्लाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अगर वो जो है प्रोबिशन कंडीशंस को वायलेट करता है तो उस सूरत में कोर्ट जो है प्रोबिशन ऑर्डर जो उसने पास किया हुआ है जुवेनाइल की रिलीज के लिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोबिशन ऑफिसर का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस लॉ। उसके बाद जो है नो डेथ सेंटेंस और रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू अ चाइल्ड, कि किसी बच्चे को जो है डेथ सेंटेंस नहीं अवार्ड की जा सकती, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती, उसको लेबर में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता। तो दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ दिस लॉ। रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अटैच्ड विद द कन्विक्शन, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि जिसमें कोई डिसक्वालिफिकेशन है, कि मसलन वो किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में काम नहीं कर सकता, या कोई और बेनिफिट नहीं हासिल कर सकता, तो वो जो है वो चाइल्ड ऑफेंडर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। बार ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होती है कि मसलन कोई ऐसा बंदा है कि वो जो है मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए जो है वो कोई हार्म क्रिएट करेगा, और उसको जबरदस्ती जो है वो स्टेट जो है वो कस्टडी में ले लेती है। यहाँ पे भी चाइल्ड के ऊपर बार है कि चाइल्ड को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं दी जा सकती। तो ये मैंने कुछ ब्रीफली आपको इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स इन पाकिस्तानी लॉज। क्या है ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर पाकिस्तानी लॉ, इसको डिस्कस करेंगे आप। Human rights of child offenders are present in different general thematic codes and exclusive acts of the Pakistani legislation. सबसे पहले Constitution of the Pakistan, which is a very important law, which is mother of all laws and applicable to the all constitutional institution applicable on this country. इसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहले जो है आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ एनी पर्सन। राइट टू लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड सेव्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। किसी बंदे को जो है उसकी जिंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता विदाउट अडॉप्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 10A, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 कहता है कि कोई बंदा जो है वो किसी बंदे को जो है वो अरेस्ट या कन्फाइन नहीं कर सकता विदाउट टेलिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या स्टेट का इदारा उसको अरेस्ट करता है तो उसको उसकी ग्राउंड्स बताएगा कि इन ग्राउंड्स की बेस पे जो है मैंने तुमको अरेस्ट किया है, और विद इन 24 आवर्स वो उस बंदे को जो है वो कोर्ट में जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसकी अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा, और वहां पे अगर उसको मजीद कस्टडी में रखने की जरूरत है तो थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट फिर वो उसको मजीद कस्टडी में रख सकता है। सिमिलरली ये आर्टिकल कहता है कि जो भी बंदा जो है किसी इल्जाम में उसको अरेस्ट किया गया है, ही हैज अ राइट टू डिफेंड एंड टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस टू डिफेंड हिज केस इन द कोर्ट। तो ये भी राइट जो है वो दिया गया है, ये चाइल्ड के लिए भी है। आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल,
कि कोई भी जो है किसी बंदे की अगर सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिटरमिन करनी है या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है, तो उसके लिए राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो उसका राइट है, जो कि अंडर इंटरनेशनल लॉज भी जो है वो पाकिस्तान इज बाउंड टू provide the right to fair trial to every citizen of its country. Next is the inviolability of dignity of man. Inviolability of dignity of man के हर बंदे की एक dignity है, किसी बंदे को जो है वो उसकी जो है इज्जत से महरूम नहीं किया जा सकता और किसी बंदे को टॉर्चर नहीं उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जा सकता फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनी एविडेंस फोर्सफुली फ्रॉम हिम। तो ये जो दो राइट हैं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 और right to dignity article 14, these are very important rights. These rights are interlinked with each other and these are inherently God given rights which have been given to every human of this world. हर बंदे का जो है वो right to life और right to dignity जो है वो खुदा ने जो है हर बंदे को दिया हुआ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी पासदारी करता है। और right to life और right to dignity उन लोगों को भी दिया गया है जो कि सीरियस ऑफेंस कमिट करते हैं, कोई कत्ल कर देते हैं, उनके लिए भी जो राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी उनकी प्रिजर्व करने की स्टेट पाबंद है। सो इफ अ चाइल्ड कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज ऑफ हिज टेंडर एज, इनोसेंस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, उसके लिए भी ये दोनों राइट्स जो हैं वो उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। एंड देन स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. State shall make the special provision for protection of women and children under Article 25(3), 26(2), Article 37(d). State shall provide inexpensive and expeditious justice to its citizens. Next जो जनरल थीमेटिक कोड है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट कैसे कंडक्ट करेगी, उसका एक पूरा ज़ाब्ता है और इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि चाइल्ड के लिए स्पेशल रिलीफ देते हैं उसको। सेक्शन 29 भी जुरिडिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल के इन केस ऑफ कस्टडी ट्रायल और पनिशमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑफेंडर हु इज बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स, तो उसका ट्रायल जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी एरिया में अपॉइंट किया हुआ है वो करेगा। Confinement of youthful offenders in reformatories, Section 39 CRPC कि अगर कोई बंदा जो है वो कन्विक्ट हुआ है तो उसको इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इन प्रिजन उसको जो है वो रिफॉर्मेटरीज में भेज दिया जाएगा अगर उसकी एज जो है वो 16 साल से कम है उसकी एज। नेक्स्ट सेक्शन 497 it gives a special concession for grant of bail in case of non-bailable offences to children and insane persons कि चिल्ड्रन को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है कि अगर उसने मर्डर भी कर दिया है तो तब भी जो है उसको बेल ग्रांट की जा सकती है अगर उसकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है। एंड देन पाकिस्तान पीनल कोड व्हिच प्रिस्क्राइब punishments for different offences in Pakistan. Section 82, Section 83, very important sections about the criminal responsibility. Dr. Khurram Saab is present here. He's a forensic psychiatrist. यहाँ पे forensic psychiatrist का रोल आता है कि वो कैसे कोर्ट को assist करेगा to determine the criminal responsibility of any child. But that is a whole debate. I'm not talking on forensic psychiatry at the moment, but forensic psychiatry apply on child cases if he commit the criminal offense. So जो पाकिस्तानी लॉ में एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है वो 10 ईयर एज है कि 10 साल से छोटा बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो दैट विल नॉट बी ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ। एंड रिलैक्सेशन ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सटेंडेड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स if the child has immature understanding at the time of commission of offenses कि उसको पता नहीं है कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसका क्या नतीजा होगा, तो उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो कोर्ट डिटरमिन करेगी
what was his mental state at the time of commission of offense. तो वहाँ पे forensic psychiatrist court को assist करेगा to determine the criminal responsibility of any child. तो यहाँ पे जो है 14 साल तक जो है इसको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाकिस्तान में जो है वो फिक्स किया गया है. I will talk on this later more. Section 299A and I definition of adult and minor. Adult mean any person below the age of who is above the who has attained the age of 18 years. That would be adult, and minor who is not adult. And section 306A qatl aam not liable to qisas. ये सेक्शन बेसिकली ये है कि अगर कोई बंदा कत्ल कर देता है तो वो उसको जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं किसास की जो पनिशमेंट है, कत्ल का बदला कत्ल, इसी तरह किसी ने हर्ट किया है हर्ट का बदला हर्ट, या आंख किसी की डैमेज की है तो उसकी आंख डैमेज कर दो, दांत डैमेज किया है दांत डैमेज कर दो, कोई ऑर्गन डैमेज किया ऑर्गन डैमेज कर दो, तो वो सजाएं जो है वो बच्चे को नहीं दी जा सकती अगर उसने कत्ल भी कर दिया है. और बच्चे को उसकी कत्ल की सजा क्या दी जाएगी, उसको जो है दियत की सूरत में जो है वो सजा दी जाएगी. दियत वुड बी determined by the court and it will be paid from any property which is in the name of child, or which would be paid by the wali of that child offender. या उसको जो है ताजीर की सजा भी दी जा सकती है, जो कि पाकिस्तानी लॉ के अंदर जो है जो स्टेट की प्रिस्क्राइब पनिशमेंट्स हैं. लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वो जज कर सकता था कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, तो उस सूरत में उसको जो है वो दियत की सजा भी दी जा सकती है, उसके साथ साथ उसको ताजीर की सजा भी दी, यानी इम्प्रिजनमेंट भी उसको हो जाएगी और दियत भी पे करनी पड़ेगी. हर्ट नॉट लायबल टू किसास, कि अगर कोई बच्चा जो है किसी को हर्ट कर देता है, शायद ऑर्गन डैमेज कर सकता है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट हर्ट की नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको जो है अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी. अर्श उसको कुछ कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा विक्टिम को, या उसको ताज़ीर की सजा भी दी जा सकती है. नेक्स्ट इज कानून शहादत ऑर्डर. इट इज बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस and its article 3 talks about that the child is competent to testify as a witness. It is up to the satisfaction of the court. The court is satisfied that the child is able to understand the questions which are put forward to him and he gives rational answers to those questions. Then the testimony of a child would be acceptable and he would be a competent witness. और उसकी टेस्टिमनी को भी उतनी ही वेटेज दी जाएगी जितनी के एक किसी अडल्ट पर्सन को जो है उसकी एविडेंस को वो वेटेज दी जाती है, उसकी बेस पे केस डिसाइड होगा. Police Order 2002 talks about the responsibilities and duties of the police towards general public and children. पुलिस ऑर्डर भी जो है बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. Rules and orders of the Lahore High Court, Volume 3, Instructions to Criminal Courts. रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि जुवेनाइल का ट्रायल जो है वो कोर्ट कैसे जो है कंडक्ट करेंगी और उनको क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करेंगी. System report number 30 and amendments in the JJSO 2000. Reforming the juvenile justice system, it gives some administrative measures and legal measures for the reforming of juvenile justice system. And इसी तरह JJSO 2000 जो था उसमें amendments के लिए भी जो है Law and Justice Commission ने कुछ reports बनाई थी, तो उनकी बेस पे अब फिर नया लॉ आ गया JJSO 2018. JJSO 2018 is an special law which is specially made for the child offender. It provides a specialized procedure for arrest, investigation, bail, trial, detention, rehabilitation, and punishment of the juvenile offenders.
So मैंने आपको इस लॉ के salient features पहले बता दी. So next part of my presentation is how human rights of child offenders are violated in child justice system of the Pakistan. कि बच्चों के human rights कैसे violate होते हैं जब वो child justice system में उनका interaction होता है. The most severe violation of human rights of child offenders is execution of child offenders. After the terrorist attack at Army Public School in December 2014, next day Pakistan has lifted the de facto moratorium on the death penalty. And after that, hundreds of prisoners were executed since December 2014. According to the Justice Project Pakistan, they issued statistics on their website, as well as they issued report on death rows children, Pakistan's unlawful execution of juvenile offenders in February 2017. And Justice Project Pakistan report on trial and terror, the overreach of Pakistan's Anti-Terrorism Act. तो पाकिस्तान ने since 2014 से लेके 516 condemned prisoners को सजाए मौत दी और उन 516 condemned prisoners में ये 6 बच्चे भी शामिल थे जिनको सजाए मौत दे दी गई. Although they were children at the time of committing their offenses and they are not legally applicable कि उनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन इसके बावजूद इनको सजाए मौत इसलिए दी गई कि इनका ट्रायल एज एन अडल्ट ऑफेंडर कंडक्ट किया गया और इनको जो है वो सजाए मौत दी गई, which is very severe violation of human rights कि आप किसी बच्चे को जो है वो सजाए मौत नहीं दे सकते. हमारा लॉ जो है वो भी यही कहता है. Although Pakistan has denied the allegation के बच्चों को सजाए मौत नहीं दी गई because lack of implementation of age determination protocol and lack of implementation of Juvenile Justice System Act 2018, execution of child offenders have taken place. Next violation is police brutality, torture, custodial death. Police brutality, torture, custodial death are common feature of policing in Pakistan. Anyone can be the victim of police brutality, torture, but children are more vulnerable because they are innocent and easy target for the police. So, Justice Project Pakistan ने एक report issue की abuse of juvenile by Faisalabad police from 2006 to 2012. फैसलाबाद पुलिस ने बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए बहुत सारे बंदों के खिलाफ उनके खिलाफ बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशन and rely on abuse and torture as a principal means of interrogation. When those persons complain about the abuse, उनकी जो है वो बात नहीं सुनी गई. So Justice Project Pakistan ने 1867 medical legal certificates को जो है वो examine किया और interviews conduct किए with the individual victims identified in medical legal certificates. ये medical legal certificate जो थे ये government sponsored physicians ने जो है वो बनाए थे after the individual filed complaints against police brutality to the local magistrate. So physician conducted medical evaluation of the individuals based on the complaints and documented sign of physical and psychological abuse. तो इन 1867 केसेस में जिनके मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स को एग्जामिन किया गया इनमें 71 ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई किया गया जिनमें जो विक्टिम थे वो बच्चे थे यानी वो बच्चों को जो है अब्यूज किया गया था. So out of 71 cases of juvenile victim identified in medical legal certificates, the physician confirmed an injury and abuse of juveniles in 58 cases. You can see in this graph, there are different kinds of abuses. Police apply on adult victims as well as the juvenile victims. The most severe abuse
the most dominant abuse, police apply on the adult and juvenile victim is severe beating. Severe beating by police, including banging the victim against something, burning, dragging, kicking, punching, slapping, or using chittar, danda, flaka, blade, dogger, dolly, firearm, knife, pointed object, axe, nail, butt of gun to beat the victim. और इन जो एब्यूजेस हैं इनमें आप देखें कि जो परसेंटेज है चाइल्ड और एडल्ट की वो ऑलमोस्ट सेम है. नेक्स्ट जो पुलिस ब्रूटैलिटी थी वो सस्पेंशन है, स्ट्रेचिंग एंड क्रशिंग है, विटनेसिंग अदर पीपल, टॉर्चर है, स्लीप डेप्रीवेशन है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, लाइट डेप्रीवेशन, कन्फाइनमेंट टू स्मॉल स्पेसेस और एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर है, कल्चरल ह्यूमिलिएशन है, sexual violence amounting to penetration, sexual violence not amounting to penetration. You see here sexual violence amounting to penetration and sexual violence not amounting to penetration. Here the child victims are double the rate as compared to the adult victim. Adult अगर 8% है तो child 16%. You can see from the graph here. So these are different kinds of abuses which police inflicted on the adult victims and child victims, and this is data of only one district of Pakistan. This is just the tip of the iceberg because unreported cases are much higher than the reported cases. और अगर हम पूरे पाकिस्तान का डेटा इकट्ठा करें तो there would be a एक तूफान खड़ा हो जाएगा कि इतने ज्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं. और पाकिस्तान में जो है जो लॉ है टॉर्चर के ऊपर वो कोई एक्सक्लूसिव लॉ भी अभी तक इनेक्ट नहीं किया. ऑल्दो पाकिस्तान हैज रैटिफाइड द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 2010, लेकिन अभी तक जो है कोई एक्सक्लूसिव लॉ इसके ऊपर नहीं जो है वो बनाया गया. नेक्स्ट है जी imprisonment of children in adult prisons, lack of child rehabilitation center and prison. बच्चों को पाकिस्तान में अडल्ट प्रिजन के अंदर ही जो है वो रखा जाता है, although in separate barracks, but in the same premises of the jail where the other hardened criminal reside. So they are vulnerable for abuse, sexual abuse from the other prisoner as well as from the jail staff. And there are a lack of child rehabilitation centers in Pakistan. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 कहता है कि बच्चे को जो है वो प्रिजन में नहीं रखा जाएगा बल्कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा. तो there are total 112 prisons in Pakistan, और इन 112 प्रिजन में 7 are made for child inmates in Pakistan. In Punjab they are called Postal Institution and Juvenile Jail. In Sindh they are called Youthful Offender Industrial School. पंजाब में एक प्रिजन जुवेनाइल जेल जो है वो बहावलपुर में है, एक फैसलाबाद, और सिंध में जो है वो 5 हैं, कराची, हैदराबाद, दादू, सक्खर एंड लाड़काना. इन डिस्ट्रिक्ट में जो है यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल. सो इस जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट्स. नेक्स्ट इज प्री कन्विक्शन डिटेंशन फॉर चाइल्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर. अंडर ट्रायल प्रिजनर मीन्स के कोई ऐसा शख्स जिसका अभी उसको सजा नहीं हुई, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसको जो है वो जेल में रखा गया है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल he will be acquitted from the case, and the time spent with the other hardened criminals during the trial period in the jail, he will become a more habitual offender. The innocence of such child would be lost forever. So बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में जो जेलों में हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं. Almost 90% prisoners जो चाइल्ड प्रिजनर्स हैं they are under trial. ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई 2018 में. नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कोड एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट इशू की अबाउट चाइल्ड प्रिजनर्स इन द जेल्स ऑफ द पाकिस्तान. तो उन्होंने इसमें डिस्क्लोज किया कि देयर आर 1343 चाइल्ड प्रिजनर्स
in 112 prisons of the Pakistan. This is approximately 1.6% of total population of prisons. तो इनमें से जो 1209 यानी 1343 में से 1209 और 90% of child prisoners were under trial prison as on 1st October 2017. So under trial prisoners को जो है वो बेल के ऊपर जो है वो रिहा कर देना चाहिए या under the custody of the probation department, probation officer उनको रिहा किया जाए, तो वो अपना केस को परसू करते रहें, लेकिन उनको बेल पे जो है वो रिहा किया। इससे ओवरक्राउडिंग भी कम होगी जेल्स में, और जो एब्यूजेस उनके साथ कमिट हो रही हैं उसका भी जो है वो अजाला किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर प्री कन्विक्शन डिटेंशन इज नॉट रिस्पेक्टेड। जुवेनाइल जस्टिस लॉ कहता है कि बच्चे का ट्रायल जो है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। Sorry to disturb you, Wajahat sahab. Actually, we are running out of time. I just wanted to confirm how much time do you need more? Approximately 15 minutes. Okay, we will try to wrap it up because उसके बाद हमने question answer session भी करना है, तो if you can do it in a आपने मुझे टाइम का पहले तो नहीं बताया, टाइम मेंशन नहीं था। Okay, sorry. Okay, next is prescribed time limit for pre-conviction detention is not respected, कि जो 6 महीने का टाइम है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता। So law कहता है कि if the child is detained for continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been concluded and delay in the trial has not been occasioned by act or omission of such child, तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। Non-exercising of age determination protocol in child offender cases, बच्चों के केसेस पे जो एज डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल है वो अप्लाई नहीं होते, उनको जो है वो अडल्ट ऑफेंडर जो है वो ट्रीट किया जाता है। उनके केसेस को जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलाया जाता है, तो उसकी वजह से उनको डेथ सेंटेंस भी होती है, और जो स्पेशल प्रोविजन दी गई हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। लो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट, पाकिस्तान में इस वक्त जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है according to UNICEF progress report 2013 to 15 is 34% children under the age of 5 years are registered. So unregistered बच्चों की तादाद में हर साल जो है वो इजाफा हो रहा है, और जब कोई बच्चा जो है वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसके पास भी प्रूव नहीं होता बिकॉज बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट बहुत कम है। ट्रायल ऑफ चाइल्ड एज अडल्ट ऑफेंडर, कि पुलिस जब अरेस्ट करती है बच्चों को तो उनको वो अडल्ट ट्रीट करती है because of lack of sensitization of age determination protocol and juvenile justice system act. इसी तरह उनका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होता है। Under section 32 of anti-terrorism act, this law has granted overriding effect over all other laws. So courts normally treat the child offender cases कि उनको जो है वो इस लॉ के ऊपर भी जो है उनको दस्तरस हासिल है। लो मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान में जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज 10 साल है, रिलैक्सेशन अप टू 14 इयर्स तक दी गई है, लेकिन जो UNCRC कमेटी है उनकी जो है जनरल कमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया है, जनरल कमेंट नंबर 24 ऑन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लेवल ऑफ एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 14 to 16 ईयर है, और कमेटी ने ये भी कहा है कि अपर हायर एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज से 16 ईयर ऑनवर्ड जो है उसको जो है कंसीडर करना चाहिए। और किसी केस में अगर जो है ये डिटरमिन नहीं हो रहा कि बच्चा जो है हायर एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल कर रहा है, उससे बियॉन्ड फॉल कर रहा है, बिलो फॉल कर रहा है, तो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बच्चे को देना चाहिए और उसको चाइल्ड ट्रीट करना चाहिए। inadequate legal representation in child cases, बच्चों के केसेस में जो है वो स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है in cases of child offenders, but if the quality of state appointed lawyer is very poor, they are not very experienced lawyer and they don't know about the technicalities of the case and latest amendments in the laws, that's why their cases are not properly pleaded in the courts, और इसकी बेस पे उनको जो है वो sentences अवार्ड की जाती है, बाज़ का डेथ सेंटेंस भी हो जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू UNCRC लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज किसी बच्चे को नहीं दी जा सकती।
तो पाकिस्तान में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो रही हैं। नो एक्सक्लूसिव चाइल्ड कोर्ट टू एजुकेट अपॉन चाइल्ड ऑफेंडर केसेस। पाकिस्तान में इस वक्त जो है सिर्फ 12 एक्सक्लूसिव चाइल्ड कोर्ट्स बनाई गई हैं जो कि दोनों किस्म के केसेस देख रही हैं, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, इन कॉन्टेक्ट विद द लॉ। तो ये चाइल्ड कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनानी जानी चाहिए अंडर द लॉ जो which is applicable on child offender. Incapacity of judges about child protection law. Judges are not very well aware of the child protection laws, and because of their incompetency बच्चों को जो proper relief है वो उनके cases में नहीं दिया जाता। तो ये some violation थी human rights of child offender. Now some suggestions. That is my last part of my presentation. Suggestions for upheld of child justice system and human rights of child offenders in Pakistan. सबसे पहली सजेशन ये है, reinstate the moratorium on death penalty. इश्तियाक गिलानी साहब said in the beginning कि जो मोराटोरियम है जो पाकिस्तान ने लिफ्ट कर लिया था, वो मोराटोरियम जो है वो दोबारा जो है वो reinstate किया जाए। डेथ पेनल्टी वैसे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और एट द मोमेंट 10% ऑफ डेथ रो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दोज condemned prisoners who were child at the time of commission of offense and can be executed one day in future. Increase the minimum age of criminal responsibility up to 16 years onwards, जो कि UNCRC कमेटी की जनरल कमेंट नंबर 24 है 2019 में उन्होंने अडॉप्ट किया था कि हायर मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया जाए, यानी 16 ईयर ऑनवर्ड। 16 ईयर ऑनवर्ड अगर बच्चा जो है वो ऑफेंस कमिट करता है, देन ही विल बी लायबल फॉर हिज ऑफेंस। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन टू क्रिमिनलाइज टॉर्चर। टॉर्चर के ऊपर कोई एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन नहीं है इस वक्त। इसके ऊपर एक लॉ लेके आया जाए, एक बिल पेंडिंग है इसमें नेशनल असेंबली में, उसको फौरन इनेक्ट किया जाए और टॉर्चर को क्रिमिनलाइज किया जाए। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एज डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल्स। पाकिस्तान में जो है वो एज जो है प्रॉपर्ली डिटर्मिन नहीं होती, उसकी बहुत सारी वजूहात बताई हैं। लो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है, इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ है, जिसकी वजह से एज डिटर्मिन नहीं होती और उनका ट्रायल एडल्ट ऑफेंडर किया जाता है। अंडर ट्रायल चाइल्ड प्रिजनर शुड बी रिलीज ऑन बेल सो दैट overcrowding in the prisons could be reduced and children would be granted their due right. Rehabilitation and provision of psychosocial support to child offender. बच्चों को जो है psychosocial support और rehabilitation देने की जरूरत है। इसमें जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में बच्चों को रखा जाए ताकि जब वो रिलीज हों तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जो है वो अपनी जिंदगी का आगाज करें। Establishment of child rehabilitation center, observation home, exclusive child courts. ये लॉ प्रोवाइड करता है कि ये बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं किए गए। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर पुलिस, जुडिशरी एंड प्रोविजन ऑफिसर्स। उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है ताकि जब चाइल्ड का केस उनके पास आए तो उनको पता हो कि केस को कैसे ट्रीट करना है और बच्चे को जो है कैसे उसकी राइट्स की प्रोटेक्शन करनी। Allocation of sufficient budget and resources for improvement of child justice system. Government must allocate sufficient budget to improve the child justice system and protection of rights of the child offenders. Conclusion of my presentation is that child justice system and human rights of child offenders can only be upheld or protected by fully implementing the Juvenile Justice System Act 2018. That's the conclusion of my talk. There are some references here. I have two journal publications on the thematic area on which I talk today. The first journal publication is Pakistan Law Review Journal. It was published in 2019, and recently our publication is published in the International Journal of Risk and Recovery. It's a journal of McMaster University, Forensic Psychiatry in Pakistan and Update. That's also related to my talk, and there are some other publications which are published in newspapers and magazines, and there are many other publications which are published in other magazines. If you need those publications, I can give you the references of those publications. Thank you very much. Thank you so much, Wajahat Saab. That was a very detailed, in-depth learning about
the state of child justice system and human right of child offenders in Pakistan. Thank you so much for that. Now I will request if anyone have a question or suggestion or recommendation, so please you guys can unmute yourself and ask. Abdul Ghafoor Saab, I think you want to say something, or anyone else want to say something, please raise your hand. And Ghafoor Saab, please unmute yourself. I think Mavish is not listening. इसको मेरे ख्याल हम कंक्लूड करते हुए जो हमारे पास 5 रिकमेंडेशन आई हैं सो फार, अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. अगर इसमें कोई इन एडिशन अगर कोई और रिकमेंडेशन देना चाह रहा है तो कुछ मेंबर्स हमारे जो जस्ट लेफ्ट उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस छोड़ गए हैं, तो उनको भी प्लीज आप ये जो आउटकम्स है आज की ये बता दीजिएगा और उनसे भी पूछ लीजिएगा इन केस कि उनके पास एडिशन टू दीज रिकमेंडेशन कुछ हैं तो वो बता दें. पहली तो ये है कि जो हमने कहा कि रीइंस्टेट करें जो डेथ पेनल्टी है ना, तो उसको ख़त्म किया जाए ये जुवेनाइल जस्टिस का. दूसरा ये है कि मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में 10 साल है, तो इसको हम कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट इसको जो 16 ईयर किया जाए. तीसरा ये है क्रिमिनल टॉर्चर इन पाकिस्तान, जो अभी डिटेल बताया वजाहत ने भी, तो इनकी जो रेटिफिकेशन जो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 2016 में हुई है, तो इसका भी नोटिस लिया जाए. और तीसरा है कि गवर्नमेंट की से हम जो जैसे मैंने कहा कि इंटर गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, जो हमारी आउटकम जो रिकमेंडेशंस और सजेशंस हैं डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री के पास जाएंगे. तो इसमें जो लास्ट सजेशन मेरे पास है, जो गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर across the country and transfer the child prisoner from jail to rehabilitation center for their rehabilitation. तो ये 4 मेरे पास रिकमेंडेशन सो फार आई हैं. तो अगर कोई और मेंबर भी रिस्पेक्टेड मेंबर कोई रिकमेंडेशन देना चाह रहा है तो प्लीज मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच इश्तियाक साहब. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें पंजाब से, साउदर्न पंजाब से, उसके अलावा बदीन से, ऑल ओवर मतलब इस्लामाबाद जो है डिफरेंट जो ऑडियंस है वो पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला. और यस, आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है, अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं. ये कुछ सजेशंस जो ऑलरेडी आई हैं मैंने नोट डाउन कर लिए हैं. अदरवाइज आपका स्पीकर से कोई क्वेश्चन, कोई और सजेशन या रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ आप लोग रेज हैंड करके अनम्यूट योरसेल्फ और आप लोग सजेशन दे सकते हैं. ओके, एक्चुअली खामोशी है तो आई एज्यूम दैट के जो जितनी भी सजेशंस हैं उनसे सब एग्री करते हैं. बिकॉज आई कैन रीड के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू वजाहत एंड इश्तियाक साहब. तो हमारे स्पीकर्स को सब थैंक्स भी कर रहे हैं. ऑलरेडी इट्स 4:30 और हमें इसको कंक्लूड भी करना है. तो इन द एंड आई गेस कि अभी किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया, नो वन वांट्स टू कंट्रीब्यूट एनी मोर. तो हम ऐसा करते हैं कि एक एमओवी के लिए जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं अगर वो वीडियो अपनी ऑन करते हैं, हम एक पिक्चर ले लेते हैं वेबिनार की. और जैसा कि पहले गिलानी साहब ने भी मेंशन किया और मैंने भी बताया था कि हमने एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, सीरीज ऑफ वेबिनार हम लोग कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह. और अगर आप लोग भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, यू थिंक कि आप लोग बहुत अच्छा किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, तो हम लोग आप सबको भी ऑन बोर्ड लाजमी लेंगे. बिकॉज दिस इज़ द वे. आप सबको जैसे पता है कि कोविड की भी सिचुएशन है, प्लस जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी के जिस तरह से शॉर्टेज हुई पड़ी है फाइनेंशियली और वो फंडिंग्स की, तो इट्स मोर ईजियर कि हम लोग सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको ऑन बोर्ड ला सकते हैं अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं. तो इसमें इस तरह की कोई कैद नहीं है कि हम जीबी नहीं जा सकते हैं या किसी और प्रोविंस में नहीं जा सकते हैं. तो हम सारे यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं.
तो अगर कोई और इसमें कमेंट ऐड करना चाहता है, और जो लोग अगर वीडियो भी ऑन करना चाहते हैं ताकि हम एक पिक्चर ले लेते हैं, एक एमओवी, एक याददाश्त के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे स्पीकर्स का, नूर साहब इस्लामिक रिलीफ से, जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की है ताकि ये जो हम लोग एक सेशन कर रहे हैं वो हो सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन टू मेक इट हैपन। थैंक यू। कमेंट कोई कर, किसी ने अगर कोई कमेंट करना है तो कर दे, मैं भी नोट कर लूं, क्योंकि मैंने ये प्रेजेंटेशन आगे अभी इस कौन की कांग्रेस में भी देनी है। यस वजाहत साहब बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की है, वेल आर्टिकुलेटेड, और काफी इंफॉर्मेशन थी इसमें, तो हेड्स ऑफ, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। Thank you for Noor organizing this webinar and creating the link of this Teams meeting. I appreciate. Together as a team we can grow, और इसी तरह काम करेंगे। जी मैं क्या बस एक लोगो मिस हो गया हमारी इस नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो देखिए हमेशा से वी आर इन द लर्निंग फेज, और हम लोग बहुत सारी चीजें जिस तरह के बताया कि दिस इज न्यू नॉर्मल, इसकी तरफ अडेप्ट कर रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट जो है बहुत सारी इस तरह की चीजें लेसन लर्न है हमारे भी, और हम उस पर लाजमी काम करेंगे। देखिए ये तो रिसोर्सेज हैं सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म्स पे, अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, और देन फिर हमारा NACG एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसमें हम इस्लामिक रिलीफ एज अ को चेयर भी ऑलरेडी है, और इस कॉज के लिए हमारे रिसोर्सेज जो जो अवेलेबल हैं, और जहाँ जहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, व्हाई नॉट। सबसे जो एडवोकेसी आज की मीटिंग हुई थी उसमें कुर्से की तरफ से, आले की तरफ से बहुत अच्छी सजेशन आई थी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो भी आप एडवोकेसी आर्ट्स में भी बल्कि सबको भी शेयर कर दें कि उन्हीं की ये सीरीज आगे चल रही है हमारी, और इंशाल्लाह इट्स ओपन फॉर एवरीवन कि जिस वजाहत साहब ने इनिशिएटिव लिया कि भाई मुझे प्रायोरिटी पे लें, और वाकई टॉपिक बड़ा अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मुझे जो मैंने उसकी रिकमेंडेशन ली है तो मुझे बड़ा लग रहा है कि ये नाट का हमें सिर्फ रिकमेंडेशन लेनी है, बल्कि इसको फॉलो अप करना है आगे मिनिस्ट्री में करके, इसको हमने फॉलो अप करना है कि ये जो रिकमेंडेशन है इसको अडॉप्ट भी किया जाए। तो उसमें फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई और भी अगर कोई हमारा मेंबर्स है जो इंटरेस्टेड हैं, हर इंसान की, हर मेंबर्स की एक एक्सपर्टी है, जिसमें हमारे पास कुर्सिया भी हैं, आलिया भी हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो जो भी अपनी एक्सपर्टी के हवाले से कुछ वेबिनार करना चाह रहा है तो हमें एक वीक का नोटिस दे दे, और हम इंशाल्लाह पूरा उसको जो NACG सेक्रेटरी है पूरा तावन करेगा, और हम इसको फैसिलिटेट भी करेंगे। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट हमारी ऑलरेडी कुछ चीजें प्लान्ड है। जी बिल्कुल, कुछ चीजें प्लान है, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे और नेक्स्ट को बिल्कुल क्यू में मार्क कर लेंगे। वजह साहब आपके लिए कमेंट है, और ग्लैन साहब आपके लिए भी है, कुछ से लिख रही है, थैंक यू NACG, वेरी एक्सटेंसिव इनसाइट बाय वजाहत। सो यस वजह साहब, आपकी वजह से बड़ा इन डेप्थ इन डिटेल हमने दोबारा से इन सारी चीजों को देखा, रिवाइज हो गई बहुत सारी चीजें, और इन्फॉर्मेशन इजाफा हो गया। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्पीकर्स के साथ और नेक्स्ट वेबिनार की सीरीज में आप सबको फिर से जो है मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, Mavish, for assuming the responsibility of moderator. You did very well. I appreciate. And Ishtiyaq Sahab, thank you for inviting me in today's webinar. So if you have any questions, you can email me. I will share my presentation with the NACG Secretariat, and you can circulate it through your email. So it will be transferred to everyone. बिल्कुल मेविश, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन जो है ये अगर सबसे शेयर हो जाए तो इट वुड बी ग्रेट। श्योर, मैं बिल्कुल सबसे शेयर कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे हर बंदा जो मेंबर है वो पढ़े इसको ना, क्योंकि इट्स वेरी डेप्थ नॉलेज है, और इसके बाद मेरे लिए क्योंकि हम भी अपने आप को चाइल्ड एक्टिविस्ट कहते हैं, कि हमारे लिए भी बहुत सारी नई चीजें थी कि उनको अडॉप्ट करना, उनके रिकमेंडेशन लेना, और एज हमारा वे फॉरवर्ड जो है हमारी एडवोकेसी आर्ट्स को है उनको ऑनबोर्ड करना, ये बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, आई गेस हमें इसे रैप अप करना चाहिए, और यस ये जितने भी आपने पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट किए हैं, वी विल डू द नीडफुल। सो थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, पिक्चर मैंने बताया, प्रिंट स्क्रीन साथ में प्रूफ लिए हैं, मैं फिर से एक दफा दोबारा ले लेती हूँ, आप लोग सारे बिल्कुल कैमरा में स्ट्रेट देखते रहें।
Sorry, I guess it's done now. So thank you so much, everyone. Thank you. Next, we will meet soon. Thank you. Allah Thank you. Khuda Hafiz.